अच्छी बात है, इसको हम एक बार कोशिश। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੀਜੀਡੀ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ BOI ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਸਤੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਵਨ CP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਮੁਕਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ 112 ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ 112 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਸਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 112 ਵਾਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 112 ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰੂਟਡ ਟੂ ਦਿਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ public.pgd.punjabpolice.gov.in ਤੇ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ। 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਇਵਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ IOs ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ SHO ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ SHO ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦਾ UID ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਤਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਇਤਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫੈਂਸਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਫੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆ ਜੂਗੀ ਸਾਡੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫੀਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, DGP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ COM ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ
ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਭੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾੜਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇसी करके आज अपराइज कर रहे हैं कि सारे ਨੂੰ ट्रेन कर रहे हैं कि ताकि सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਹੈ बेहतर हो सके। काम का बोझ लगातार पुलिस पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, नफरी कम होती जा रही है। जो ये सिस्टम है कंप्यूटराइजेशन का ये मकसद होता है कि पुलिस के पास जो काम का बोझ घटे, तो जो ये हम एफर्ट कर रहे हैं इसके अंदर काम का बोझ घटेगा। इसके अंदर मल्टीपल इंक्वायरीज अगर हो रही हैं, कोई अभी कंप्लेंट अगर मान लो 10 कंप्लेंट दे रहा होगा तो वो एक जगह क्लब हो जाएगी, एक आईओ के थ्रू होगी, अलग अलग इसकी कंप्लेंट जो है उसकी इंक्वायरी नहीं होगी। और एक बार वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली देखने के बाद अगर ये डिस्पोज ऑफ हो जाती है तो जैसे कि हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया है मल्टीपल इंक्वायरी इसके बाद नहीं होगी तो विल नॉट डू द मल्टीपल इंक्वायरी। एक बारी जो इसका सिस्टम इवॉल्व कर रहे हैं वो सिस्टम ये है कि इसके अंदर कंप्लेनेंट ने जो एलिगेशन लगाए गए हों उनको जॉट डाउन किया जाए पहले इंक्वायरी ऑफिसर के जरिए। उसके बाद हर एक एलिगेशन का जो है वो पैरावाइज जवाब तैयार किया जाए। उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जितने भी एविडेंसेज हैं वो कलेक्ट किए जाए। जो आदमी उसके अंदर अक्यूज्ड नहीं है उसको उसके अंदर से निकाल दिया जाए। जो एलिगेशन सही साबित हो उसके मुताबिक उसकी रिकमेंडेशन हो। जब इतनी मेहनत करने के बाद आईओ करेगा तो एसएचओ उसकी रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा, उसको देखेगा। उस रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद वो डीएसपी के पास जाएगी और डीएसपी उसको एग्जामिन करेगा, देखेगा और फिर फाइनल डिसीजन होगा। अगर एक बार फाइनल डिसीजन करने के बाद जब हमने आरटीआई में उसको एक रिपोर्ट की कॉपी देने का भी प्रोविजन रखा हुआ है, जब आरटीआई में उसको हम रिपोर्ट की कॉपी देंगे, अगर उसको लगता है कि कोई ऐसा इशू इसके अंदर जो है वो नहीं टेक केयर हुआ है, या मान लो किसी का स्टेटमेंट नहीं लिखा गया या इंक्वायरी के अंदर किसी कोई एविडेंस को नहीं लिया गया, तो उस एविडेंस से रिलेटेड वो अपना जो है एक अपील करेगा सीनियर ऑफिसर को। जो भी आईजी साहब, डीआईजी साहब, डीजी साहब किसी को भी अगर करेगा तो वो उस इशू के ऊपर दोबारा इसको देख करके उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और फिर फाइनल जो इशू होगा उसके बाद हमारे पास डिस्पोज ऑफ होने के बाद कंप्लेंट की इंक्वायरी जो है वो मल्टीपल नहीं होगी, क्योंकि इट वुड इनवाइट द अटेंशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑल्सो। सर पर्पस इसका यही रहेगा कि लोगों की जो खजलख्वारी है उसको कम करना, या पेपर वर्क भी कम हो जाएगा? इसमें पेपर वर्क भी कम होगा क्योंकि सारा का सारा इसके ऊपर सॉफ्टवेयर पे करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर जो कंप्लेंट है उसका बिल्कुल अकाउंटेबल सा सिस्टम लॉगिन हो, इसके ऊपर ये हर जगह पे दिख रही हो, लोग इसके ऊपर अपनी कंप्लेंट को भी मॉनिटर कर रहे हो और टाइम बाउंड हो। बिल्कुल बेहतर तरीके से टाइम बाउंड मैनर में इसको किया जाए, बार बार लोग थानों के चक्कर न लगाए और लीस्ट टाइम के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करें। इसमें ज्यादातर जो आजकल देखने को आ रहा है कि बॉर्डर एरियाज में नशे का जो वो है ज्यादा बढ़ रहा है, उसमें एक रैंडम कंप्लेनेंट होता है कि ये यहाँ पे नशा बिक रहा है, साथ में हो सकता है वो कोई प्रूफ भी लगा दे। ऐसे में क्या करेंगे, जैसे नशे का कोई शिकायत करनी है उसने, वो मतलब मुद्दाई नहीं बनना चाहता लेकिन इसको इन्फॉर्मेशन देना चाहता आपको। बिल्कुल, इसके अंदर एनोनिमस कंप्लेंट करने का एक प्रोविजन इससे पहले हमारे सांझ पोर्टल के ऊपर मौजूद था, जिसके अंदर कंप्लेंट एनोनिमस की जा सकती थी, जिसमें कंप्लेंट एनोनिमस करने के बाद ख़ास तौर से ये ड्रग से रिलेटेड या कोई और कंप्लेंट अगर है, अगर वो दी जाएगी तो उसकी कंप्लेंट का जो है उसका नाम, ऑब्वियसली उसने अपना नाम नहीं दिया हुआ है पर हमारे रिकॉर्ड पे कहीं ना कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नीचे डाउन द लाइन शेयर नहीं करी जाएगी। और वो इन्फॉर्मेशन जिस किसी सिटीजन ने दी है उसके ऊपर प्रॉपरली एक बार एक्शन करने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार होगी कि भाई इस एरिया के बारे में जो बात की गई है उसके ऊपर ऑफिसर्स अपने कमेंट देंगे कि जो ये इन्फॉर्मेशन आई है ये सही है या गलत है, जिसमें लोकल सिटीजन से भी कांटेक्ट किया जाएगा, लोगों से बात करी जाएगी, उस एरिया के मोतबर जो लोग हैं उनसे उसके बारे में वेरीफाई किया जाएगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होगी। जो पहले के दिनों में होता था कि एक बार अगर वो कंप्लेंट आ जाती थी तो उसके ऊपर एसएचओ की एक सिंपल रिपोर्ट आ जाए कि नहीं जी
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ या नहीं पाया गया या निगरानी की जा रही है, दैट काइंड ऑफ रूटीन रिप्लाई के बजाय एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इसके ऊपर तैयार होगी, सो दैट उस एरिया के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही हो दैट कैन बी निगेटेड। कैटेगराइज करके जो भी शिकायतें आएंगी काम न करने की, लोगों को ये लगे कि वाकई सरकार एक इंफॉर्मेशन। ये आपका बहुत अच्छा सजेशन है, आई वेलकम इट। हमारे अभी ये नोटिस में नहीं था, पर ये बात की जा सकती है। ये आपकी बहुत अच्छा सजेशन है कि एसएसपी ऑफिस के बाहर भी स्क्रीन लगी हो कि कितनी कंप्लेंट आई और कितनी डिस्पोज ऑफ होगी, कितनी डिस्पोजल के लिए पेंडिंग है, कितनी आगे, सो दैट हम अब एक बार जनता के कोर्ट में खड़े हो जाएं और उनके सामने अपने आप को हम रखें कि देखो हम कितना काम इसके अंदर कर रहे हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन हो हमारे इंडेवर की और हम भी सेटिस्फेक्शन हासिल करें कि पब्लिक इस बात के ऊपर फेथ कर रही है। पुलिस पर जो ये इल्जाम लगते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, एग्रीड, आई डू एग्री, बिल्कुल आपकी ये अब अच्छी बात है, इसको हम एक बार कोशिश करेंगे आगे फर्दर करने की। सर एक और पेंडिंग बहुत अच्छा सजेशन अलग है कि जो पंचायती जमीन है उसमें कब्जे हुए हैं, पुलिस उसको कब तक छुड़वाना शुरू करेगी, कोई इसकी पर नहीं, देखिए ये तो रेवेन्यू का इशू है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स इसके ऊपर करके जब पुलिस से इमदाद मांगते हैं कि उसको छुड़ाने के लिए कुछ और कार्रवाई करनी है तो पुलिस उसके अंदर इमदाद करती है। ये रेवेन्यू का डायरेक्टली पुलिस से रिलेटेड इशू नहीं है, तो मुझे लगता है कि जब कभी भी उनकी तरफ से कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली टेक एक्शन। सर नीचे जो है स्टाफ है थाना में, उनको भी एजुकेट करने के लिए कोई पुलिस अभियान चला रही है? बिल्कुल। एक इंसिडेंट आपको यहाँ नोट करना चाहता हूँ, आप ही जाते तो इस तरह की एजुकेशन सर के लिए नहीं, इसमें एजुकेट भी किया जा रहा है और इसके अंदर इस बात के ऊपर सख्ती भी की जाएगी और कि अगर कोई आदमी थाने में जा रहा है तो ही शुड नॉट बी सेंड बैक, उसकी कंप्लेंट को एडहेयर किया जाए, उसी वक्त सुना जाए और उसमें कोई इसके अंदर दोबारा भेज करके वापस ले आकर कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई कहेगा कि हम गए थाने में 2 बार 3 बार 4 बार और हमारी सुनी नहीं गई, हमको वापस भेज दिया गया, तो इसकी एविडेंस देखी जाएगी एंड देन एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज ऑफिशियल्स जो सुन ना रहे हो इस मामले को। सर मैं एक बार फिर वही सवाल जी प्लीज सर, सरल लैंग्वेज में एक कॉमन मैन को पता, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे। जी जी प्लीज। सर इसको शिकायत कैसे, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कंप्लेंटेंट आता, एक कंप्लेंटेंट को कैसे समझाएंगे कि किस तरह करें? देखिए कोई भी कंप्लेनेंट जहाँ पहली बात तो ये कि हर एक कंप्लेनेंट को एक विंडो है, अगर वो चाहे तो कंप्लेंट को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है। कंप्लेनेंट को एक जब वो इसके ऊपर लॉगिन करेगा तो एक अकाउंट मिल जाता है जिसके ऊपर वो कंप्लेंट को, बल्कि उसका एक बॉक्स है, एक बैंक खाता जैसे होता है, वो एक खाता खुल जाएगा, वो जितनी भी कंप्लेंट फ्यूचर में लॉन्च करेगा वो सारी उसी के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। इवन हम उसके अंदर जो रिपोर्ट उनको करेंगे या उसकी रिपोर्ट भेजेंगे वो भी उसी पोर्टल में भेजी जा सकती है, वो अपने उसको मॉनिटर कर सकते हैं वहाँ से। दूसरी बात, जो अगर किसी को अपनी कोई बात कहनी है ये कंप्लेंट करने के बाद तो वो अपने नंबर, अदरवाइज तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन लगातार उनको मिल जानी है कि कहाँ पे किसके साथ ये मार्क हो रही है। अगर वो उनको लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही या कुछ और ऐसे लोग हैं जो पोर्टल के ऊपर नहीं जा करके लॉगिन कर सकते या लॉन्च कर सकते कंप्लेंट, ये हर एक ऑफिस में जा करके, थाने से लेकर के ऊपर एसएसपी साहब या सीपी साहब के ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट दें, उनकी कंप्लेंट उसी सिस्टम पे लॉन्च की जाएगी। लॉगिन करने के बाद उसके ऊपर उनको मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे और उनको ये पता लग जाएगा कि ये कंप्लेंट उनकी इसके ऊपर रजिस्टर हो गई है। पोर्टल है कौन सा सर? पीजीडी पोर्टल है, पीजीडी पब्लिक ग्रीवांस डिवीजन, pgd.punjabpolice.gov.in। ये सर मोबाइल से भी आप मोबाइल का अभी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, वी आर इन द इनिशियल फेज। हम इसको एक बार करने के बाद पहले तो हम अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपना सिस्टम ठीक कर लें, हम एक बार इसकी रिपोर्टिंग के ऊपर प्रेशर डाल करके इसको पहले सही कर लें, देन आफ्टर इसके बाद हम आपको वो फैसिलिटी भी देंगे कि अगर आपने कंप्लेंट करनी हो तो दैट वुड बी अवेलेबल ऑन मोबाइल ऑल्सो। इस पोर्टल के बारे में लोगों को कैसे बिजनेस में सर ये वीडियो है, तो ये कहा जा रहा है कि मोकमपुरा की नहीं जा रही है सर, कुछ तरह की बोल रहे हैं, कुछ मोकमपुरा की बोल रहे हैं। देखिए इस तरह के जितने भी वीडियो वायरल होते हैं, हमारा एक पूरा सेल बना हुआ है जो सोशल मीडिया के ऊपर जितनी इस तरह की वीडियोस वायरल होती है उनको मॉनिटर करता है और उसके ऊपर कंसर्न ऑफिसर्स को दिया जाता है ये कि इसके ऊपर वो कार्रवाई करें। अगर ये अगर जिस एरिया का कंसर्न का है उसके ऊपर इमीडिएटली कार्रवाई होगी, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, वीडियो एविडेंस मौजूद है। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। जो आप कंसर्न ऑफिसर से उनसे मिलिए, एज अ सिटीजन आपको लगता है कि इसके ऊपर आप हमारा पोर्टल का एड्रेस है उसके ऊपर कंप्लेंट लॉन्च करिए, दैट वुड बी टेकन केयर ऑफ। पुलिस के सर काफी काम बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, शुरू में बढ़ेगा पर एक बार घटेगा भी। सर कुछ
सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ लॉन्च कर रहे हैं सर? ये पोर्टल सीनियर सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है। अगर जो सीनियर सिटीजन इसके ऊपर होंगे तो पुलिस उन तक अप्रोच करेगी, फिर वो उनको मतलब थाने नहीं बुलाया जाएगा। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस इशू किए जाएंगे कि भाई अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको थाने ना बुलाया जाए। अब वैसे भी हमने इसके अंदर अप्रोच ये रखी है कि जब किसी आईओ के पास पहुंच जाएगी तो आईओ खुद कांटेक्ट करेगा, बजाय इसके कि जो आज कंप्लेनेंट है वो चारों तरफ पूछ रहा हो कि जी मेरी कंप्लेंट कितने गई, जी मेरी कंप्लेंट कितने गई। वो कंप्लेंट जो आईओ होगा ही विल हिमसेल्फ कॉन्टैक्ट एंड कॉल दैट ऑफिसर देयर कंप्लेनेंट।